Hello friends, in today's episode I'm going to show you a medical talk. Subject is life after retirement. Indian Oil Retired Officers Welfare Association's Gurugram chapter with Fortis Gurugram organized this talk when Dr. Megha Pruthi, HOD of Pain and Palliative Care and Dr. Neha Rastogi, Consultant Infectious Diseases, delivered this talk. Let me take you through the excellent delivery by the subject specialist on this subject. Friends, this type of initiative by Irova Gurugram chapter is really laudable because this talk will benefit not only Indian Oil officers but all the senior citizens of the country. Please come with me and watch till end. Thank you very much and God bless you. I would like to welcome ma'am and say some few words. Thank you so much, Paras, and thank you so much, the entire team, and thank you all of you to come here on a Sunday morning. Yeah, and thanks for it. It's our pleasure, please. Thank you. Because we all are Sunday, Mondays all equal for us. I wish I want to go to that phase very soon. This place is very good. Yeah, we all have our complaints, isn't it? Although, yeah, I'm truly fortunate to work in the field that I'm passionate about and that I really feel about the thing that I work for. So that way, yeah, I'm very, very fortunate that I get to work into what I really want to. So I think I don't have any PPT or something. I think we'll just interact about things. These are very casual topics that we will be discussing. So I head the Department of Pain and Palliative Care, right? So anybody who knows what is pain medicine and किसी को पता था कि पेन के अलग से डॉक्टर्स होते हैं? हमें तो नहीं मालूम था। नहीं मालूम था ना? अच्छा, हैंड रेज करते हैं जिसको मालूम था। कितने परसेंट? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quite a few. 8. I mean, still, I'm quite happy about that. But we are not in pain. I am sure. और ये टॉपिक से मेरे को पसंद नहीं आया है जो पारस ने रखा, पेन एंड पैलिएटिव केयर इन elderly. Who all are elderly here? No, nobody is elderly. All are young. All are young. Yes. फिर आप ये लॉन्ग टॉपिक सुनने क्यों आ गए? Everyone must be more than 70 years old. Yes. And that's just a number. In your heart, how many of you feel that I'm elderly now? No one. Nobody. No one. So just a little anecdote, कहाँ से मेरे को ये elderly वाला मैं बहुत सारे जब भी किसी फोरम पे बात करती हूँ, many times I give this point, how I got this point of elderly, है ना? So I took my dad to a cardiologist once, and so in my own hospital, very friendly doctor. So he asked my dad, "So how young are you?" You know, so that's the question that actually stuck me. हम normally पूछते हैं, "How old are you?" आपकी age कितनी है ना? So how young are you? So I thought, yeah, that's right. He's not old. Let him be young, isn't it? So yeah, so that's how. But ठीक है, elderly is an age. And elderly is also एक physiological चीज़ है ना, जो हम सबको होना है, जो हम do I need a mic? No? Yeah. No, it's okay. Yeah. No. With mic. Yes. Okay. So elderly मतलब age तो हम सबकी बढ़नी है ना, ये जो लाइफ साइकिल है हमको कंप्लीट करना ही पड़ेगा, इसमें हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है और हम ब्रेन से एकदम यंग रहते हैं, हम we still feel we are 30s 40s we can do, हम सब कर सकते हैं, हम ये भी कर लेंगे वो भी कर लेंगे, बट यस हमारी बॉडी के अंदर के जो ऑर्गन्स हैं वो कहीं ना कहीं थोड़े थोड़े डिजेनरेट और डिजेनरेटिव चीज़ें हमारी एज के साथ होती हैं, जिसमें कुछ हैं जैसे कमर डिजेनरेट होती है ना. सो हाउ मेनी ऑफ यू किसको बैक पेन हुआ है कभी भी? कभी भी तो हुआ है. है ना? हमें तो कभी नहीं हुआ. 90%. हमें तो You कभी can नहीं be in हुआ. last 10-20%. So mostly, I think more than 90% of us, for that matter, every human being experiencing some pain or the other during the lifetime. कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिसको जीवन में कभी दर्द ही ना हुआ हो? नहीं हो सकता है ना? Knee pain is something, right? जो हम सब ना
ये सब के साथ जीने की आदत ही डाल लेते हैं। कमर, और बुढ़ापा आ रहा है, अब थोड़ा बहुत करम, कमर दर्द होएगा, कोई नहीं चलते चलो, है ना। ज्यादा क्या है, एक वोब्रान खा लिया, ब्रूफिन खा लिया, फिजियोथेरेपिस्ट के पास चले गए, 15 दिन फिजियोथेरेपी कर ली और चलते चले, राइट। सो एक इम्पॉर्टेंट बात, जब भी कोई एक्यूट पेन होता है ना, जब सपोज कोई कमर दर्द एक तो है कि रेगुलर चल रहा है, हम हमेशा पेन को 0 से 10 में नापते हैं। 0 मतलब दर्द नहीं है, 10 मतलब जान लेने वाला दर्द, ठीक है। लेस देन 3 पेन है, सो अगर इतना थोड़ा सा दर्द चलता रहता है, हम फिजियो करा रहे हैं, सही है, नॉट बैड, ठीक है। लेकिन एक्यूट पेन में हमें फिजियो नहीं कराना होता। टेक माय वर्ड्स, इतनी सिवियर पेन में लोग पहुंच जाते हैं एकदम फिजियो के पास, वो भी खींचातानी करना शुरू कर देते हैं। नो फिजियो इन एक्यूट पेन, राइट। पहले हमें पेन मैनेज करना है, उसके बाद हमें फिजियो से बहुत मदद मिलेगी। और लॉन्ग टर्म पेन रिलीफ के लिए हमें फिजियो चाहिए है, लेकिन एक्यूट पेन में नहीं चाहिए, ठीक है। वन इम्पॉर्टेंट थिंग, सो आई थिंक नाउ दैट हम बैक पेन के बारे में बात कर रहे हैं, सो बैक पेन के ना 5 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। 5 चीजें। फर्स्ट होता है बैक पेन में प्रिकॉशंस। बैक पेन के लिए क्या क्या प्रिकॉशंस है? बिल्कुल सही। नेक्स्ट, वेट नहीं लिफ्ट करना, वेट नहीं लिफ्ट करना, वेट लिफ्ट नहीं करना है, हाँ। नीचे से कुछ उठाना तो नीज को फोल्ड करना है। हाँ, मतलब ऐसे बैठ के उठा लो, फिर भी ठीक है, वैसे तो ऐसे भी नहीं बैठना है, क्योंकि उकड़ू बैठना भी बैक पेन के लिए खराब है। उकड़ू बैठ तो जाएंगे, लेकिन जब उठते हैं तो कमर में दर्द होता है ना। वो एक्सरसाइज, वो सेकंड पॉइंट आएगा। प्रिकॉशंस, और कोई प्रिकॉशंस? ये लेटे हुए हैं तो उठना है तो थोड़ा सा करवट से उठना है, ठीक है। और कोई प्रिकॉशंस? वॉकिंग, फिजिकल एक्टिविटी। Yes, so that will come in second point, which is exercise. Yes. Not hurting your body. हाँ, no jerky movements, है ना, smooth movements always, right? Any other precaution that we can take? Posture, correct posture, right? Back में हम आजकल मतलब those of you who are working and you know जिनको बैठकर लैपटॉप पे stocks and ये सब बहुत सारे लोग सब कुछ करते रहते हैं. So जब हम बैठे हैं, no prolonged sitting, no prolonged standing, ठीक है? आगे नहीं झुकना है, भारी सामान नहीं उठाना है, उखड़ू नहीं बैठना है, ठीक है। क्लियर है? 5 प्रिकॉशंस, ठीक है। क्योंकि एक बार बैक पेन हो गया, इन प्रिकॉशंस के बिना हम बैक पेन कभी ठीक नहीं कर पाएंगे। चाहे आप बाकी 4 पॉइंट जिस पे हम आ रहे हैं वो सब करते रहो, अगर प्रिकॉशंस नहीं लेंगे बैक पेन ठीक नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि एक चीज पे चोट लगी हुई है, हम उस पर बारी बारी चोट मारते रहेंगे तो वो कभी हील नहीं होगा ना, राइट। So precautions very important. Second is exercises, right? I'm sure आप सब लोग कभी ना कभी फिजियो के पास गए होंगे, सबको एक्सरसाइज, स्ट्रेट लेग लिफ्टिंग, ऐसे करो, कैमल एंड कैट, ये सारे एक्सरसाइजेस कहीं ना कहीं किसी किसी जगह पर सुने होंगे, करे होंगे। So exercises very important part, right? 1 2 थर्ड आता है मेडिसिन्स, ठीक है। देन जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, हमारे सभी ऑर्गन्स थोड़े थोड़े से एट वर्ज आ जाते हैं कि खराब हो सकता है, सब किडनी है, लिवर है, तो हमको जो मेडिसिन लेने हैं ना, बहुत सेफ मेडिकेशंस लेने हैं। हम रेगुलर यंग पर्सन 15-20 दिन, महीना भर भी वोवरन खा लेगा ना, उसकी किडनी को कुछ नहीं होने वाला है, राइट। ओल्ड एज में हमने देखा है कई बार, एक हफ्ता भर भी इंसान कॉम्बिफ्लेम लगातार खा लेते हैं ना, उनके किडनी फंक्शंस डिजीज हो जाते हैं। I have seen people landing up in kidney failures because of intake of overruns. That's right. So no, अपने मर्जी से दवाई नहीं खाना है. Right. Because of this. I can understand, and this is so common, so common. We see day in day out. Patient पेन चल रहा था, हम तो सुबह शाम वोवरन खा के चल रहे थे, right? No Wobrans for you guys. No Wobrans. No Combiflam. No Combiflam. No Combiflam, no Flexon. Okay, सब में ऑलमोस्ट सिमिलर ही चीज है, ठीक है। ये सब हमको नहीं खाना है खुद से। So if suppose you come to me, I might prescribe you still, but then I know how much time can you take, right? How much dose can you take, right? People take Wobrans 3-4 times a day, haven't they? Yes. हमने कभी खाया नहीं। आपने नहीं खाया, बट किसी ने देखा है कि 3 बार 4 बार वोब्रन खाए जा रहे हैं, कॉम्बिफ्लेम maybe one tablet I mean, देखो बहुत बार कुछ नहीं होगा, और once a week खा लिया तो कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, मोस्ट लाइकली, राइट। कंटिन्यूस इनटेक ऑफ
over the counter medications. No, please don't do that. That's not for you. I mean, 30-40 में लोग खाकर चल लेते हैं, उनकी बॉडी रिकवर कर जाती है ना. अभी हमको मोस्टली कैसे पेन्स होते हैं, डीजेनरेटिव, है ना, कि भाई जो कमर, अब सोचो भाई हमारी कमर 60 साल से वो बोझ हमारा उठा किसेगी जब हम रेगुलर एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, राइट? क्योंकि जब हमें दर्द होता है तब तो हम फिजियो पे चले जाते हैं, जब हमें दर्द नहीं होता तो रेगुलर एक्सरसाइज कितने लोग करते हैं रेगुलर? Me. Yes. That's how we are here. Yes. तो ये रॉन्ग ग्रुप है. ये- वो वाले जो लोग नहीं करते उनको यहाँ पर बिठाना पड़ेगा, है ना? तो आप लोग तो ऑलरेडी मोटिवेटेड हो. Yes. Only walk is not enough. You have to stretch head to toe. Yoga asanas, you know. Yoga. Yes. Yoga is very good. But then when we are above 60, so yoga को हमें थोड़ा सा देख कर करना पड़ेगा कितने, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा नीचे बैठ के. नहीं, और वो सब I'm talking about back pain, you know, back asanas, you know. हाँ, बैक के what do you call भुजंगासन. Yeah. And relaxation is also good. Relaxation है ना, योगा वाले बहुत सारे वो relaxation कराते हैं. That's an exercise for your mind and your body, right? So relaxation is again to toe. We have to move all our muscles at least once a day, right? हम सब फोन पे कुछ करते हैं, yes, no? Yes. Everybody. Everybody. Including So, me. This is the posture, right? This is the posture. Have we ever like extended our neck? पीछे, आगे तो सब करते हैं. So even if you take out 15 minutes morning, 15 minutes evening, or half an hour in a day, that's more than enough. हमारी जो मांसपेशियां है ना, चलने के लिए बनी है ना? आपने देखा है फ्रैक्चर हो जाता है किसी का हाथ, सपोज उसमें होता है, what do you call it? कास्ट में, है ना? सो उसके बाद जब 1 महीने बाद खुलता है, दोनों हाथों में डिफरेंस होता है ना? पतला हो जाता है ना ये वाला हाथ जिसपे कास्ट होता है. क्यों? वो मांसपेशी यूज नहीं हो रही है ना, है ना? सो सिमिलरली हम अपनी मांसपेशियां नहीं यूज करेंगे, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी. कॉन्ट्रैक्ट होंगी जब भी कभी हमने यूं उठ करके कुछ उठा लिया, वो टूट जाएगी. पर ओवर यूज से भी तो मसल्स वीक होती है. ओवर यूज नहीं करना है, बट यूज नहीं तो करना है. ओवर यूज इज ऑल्सो नॉट गुड, है ना? हमें वी हैव टू रिस्ट्रिक्ट आवरसेल्व्स समवेयर कि भाई इतना हम कर सकते हैं और इतना ही हम करेंगे, है ना? हमको सुपर हीरो नहीं बनना है कि हम सारे आसन कर लेंगे और ऐसा. हम बेसिक अगर हेड टू टो सारे एक्सरसाइजेस कर लें. I'll tell Paras to distribute. We have pamphlets, जो gentle Okay, that'll be exercises, good. stretching exercises के. So we can get that to you, है ना? So वो exercises हमको regular करना है. हम थे back pain पे 1, 2, third is medications हमने बताया. Now fourth होता है, suppose ये तीनों चीजें हमने कर लिया और हमारा नहीं ठीक हो रहा है. Then what? डॉक्टर दवाई भी डॉक्टर से ही लेनी है. तो वही कह रहे हैं ना. हाँ, नहीं दवाई दे दी डॉक्टर ने, फिर भी नहीं ठीक हुआ फिर भी नहीं ठीक हो रहा तो क्या? फिर बोन टेस्ट कराओ. बोन टेस्ट तो आप सबका उसमें कमी आना है. टेस्ट कराने की आप लोगों को कोई जरूरत नहीं है. ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपीनिया तो आप सबका आएगा और फीमेल्स का तो 100% आएगा. करेक्ट. तो उसके लिए हमें देखो, सिर्फ कैल्शियम या विटामिन डी खाने से नहीं होगा. जब तक वो यूटिलाइज नहीं होता है हमारी बॉडी में, जब तक हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे, राइट? सो एक्सरसाइज करेंगे तभी विटामिन डी और कैल्शियम जो हम पॉप इन कर रहे हैं वो हमारी बॉडी में यूज हो पाएगा, राइट? सो फोर्थ होता है, छोटे से इंजेक्शंस हम कुछ लगाते हैं, वो पेन स्पेशलिस्ट लगाते हैं, राइट? सो कमर में मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम्स आती हैं डिस्क की, है ना? सेकंड आती है फैसेट्स, छोटे छोटे ना जॉइंट्स हमारे खराब हो जाते हैं. जैसे घुटना सबको पता है ना, घिस जाता है, घुटने में डिजेनरेशन हो जाता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस जिसको बोलते हैं ना. सो ऐसे ही हमारे छोटे छोटे जॉइंट्स में भी, बैक में भी वैसे ही छोटे छोटे स्पाइनल कॉर्ड जॉइंट्स. में, स्पाइनल स्पाइनल कॉर्ड. कॉर्ड, हाँ, जो दो हमारी स्पाइनल कॉर्ड में कितनी हड्डियां होती हैं? 32. हाँ, तो वो सारी जो आपस में ना 3 जॉइंट्स से जुड़ी हैं, आसपास छोटे छोटे से जॉइंट्स होते हैं. जैसे घुटना खराब होता है वैसे ही वेट कैरी कर करके वो जॉइंट्स भी खराब होते हैं. वो बड़े कॉमन कारण है ओल्ड एज में, वो ज्यादा कॉमन है दैन डिस्क. ठीक है, बहुत बार कमर में दर्द होता है. डिस्क मोस्टली अगर होती है, कमर में दर्द होता है, थोड़ी ज्यादा बढ़ जाती है तो शियाटिका, जो कि नीचे तक है ना. तो शियाटिका में जैसे ही शियाटिका हो, हमें फिजियोथेरेपी कराने नहीं जाना है. ठीक है, you must see a pain doctor so that first thing is again precautions, exercises, medicines. ठीक है,
एंड आई वुड से 70% ऑफ पीपल विल गेट बेटर विद दिस, ठीक है। एंड अगर नहीं होता है तो हमें क्या करना है, छोटा सा इंजेक्शन, वी गिव सम एक्सरे गाइडेड इंजेक्शंस, जिससे कि जहां पर वहां सूजन हो रही है तो वो हम सूजन कम कर देंगे, ठीक है। पहले के ज़माने में जो डॉक्टर्स थे वो ओरल स्टीरॉइड्स देते थे। स्टीरॉइड बहुत बढ़िया मेडिकेशन है ना, हम सब डर जाते हैं ना स्टीरॉइड के नाम से, स्टीरॉइड नहीं ये नहीं लेना है। पहले के ज़माने में मुंह से हम स्टीरॉइड खिला देते हैं ना, तो अभी क्योंकि तब ये एडवांस टेक्निक्स नहीं थी, तो अभी हम क्या करते हैं, स्टीरॉइड्स हम स्टीरॉइड सूजन कम करने की दवाई होती है, एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है, ठीक है। सो इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए अब हम डायरेक्टली वहीं डाल देते हैं। शोल्डर हो सकता है, एंकल हो सकता है, नी हो सकता है। क्या नी में अब हम स्टेरॉइड नहीं डालते हैं, नी के लिए बहुत एडवांस तरीके आ गए, आई विल कम टू दैट। बट नी में बहुत ही अब रेयर है दैट, मतलब आई डोंट पुट एटलीस्ट, मेनी पीपल डू, मे बी आई डोंट। सो स्टेरॉइड्स, वेयर वाज आई, कीप हॉपिंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। सो मैं क्या कह रही थी, हाँ इंजेक्शंस है ना, इंजेक्शंस तो एग्जैक्टली वहीं पर डालते हैं, ठीक है। एंड हाँ वो 6 महीने काम करते हैं, क्योंकि एक्चुअली जो डिस्क है उसको तो वो अंदर नहीं घुसा रहे हैं, वो कुछ भी ऐसा बदल नहीं रहे हैं, वो केवल सूजन कम कर रहे हैं और आपको समय दे रहे हैं अपनी बैक को स्ट्रेंथन करने का। वो 6 महीने जो मिलते हैं ना, वो हमको कमर की एक्सरसाइज पे यूज करने हैं। वो एक तरीका है कि क्विकली हम पेन फ्री हो जाएं और हम जो सेकंड एक्सरसाइजेस हैं वो हम बेहतर कर पाएं, क्योंकि सिवियर पेन चल रहा होता है। सिवियर क्या, मॉडरेट पेन में भी हम एक्सरसाइजेस नहीं कर पाते, है ना। माइल्ड पेन में हम एक्सरसाइजेस कर सकते हैं और हमें कर लेनी चाहिए, बट मॉडरेट टू सिवियर पेन है ना, 0 to 3 माइल्ड पेन, 3 to 6 मॉडरेट पेन, 7 to 10 सिवियर पेन, ठीक है। सो मॉडरेट टू सिवियर पेन में ना हम एक्सरसाइज कर सकते हैं और हमें करने भी नहीं चाहिए। फर्स्ट लेट अस गेट आवर पेन टू 0 to 3 और फिर हम एक्सरसाइजेस करें, ठीक है। अगर चौथे से भी नहीं हो रहा है तो सर्जरी लास्ट रिजॉर्ट। बहुत कम पेशेंट्स में हमें सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। सर्जरी के इंडिकेशंस क्या होते हैं बैक पेन में, अगर हमारे को प्राइवेट पार्ट्स में कुछ सुन्नपन आ रहा है, यूरिन या मोशन पास करने में इनकॉन्टिनेंस हो रहा है, या हमारे पैर को चलने में लड़खड़ाहट है, पैरों में सुन्नपन या भारीपन आ रहा है, सो ये मेजरली केवल इंडिकेशंस होते हैं सर्जरी के। अदरवाइज ये 4 चीज़ों से मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम बैक पेन को मैनेज कर सकते हैं। बैक पेन क्योर नहीं होता है, ठीक है ना। सो डोंट एक्सपेक्ट मैजिक हैपनिंग। बैक पेन क्योर नहीं होता है, बैक पेन मैनेज होता है, ठीक है। मैनेज कैसे होता है, ये सब चीज़ें कर लिया, ठीक ठाक होने लगा, जीवन चलने लगा, एक्सरसाइजेस रेगुलर एज इन, वैसे आपको आज ही से एक्सरसाइज, आप लोग सभी वैसे मोटिवेटेड लोग हो, सो एक्सरसाइजेस करते ही हैं, बट एक्सरसाइजेस हमको रेगुलर करनी है। और जो आपके आसपास, आई एम श्योर एक इंसान के आसपास 10 लोग ऐसे होते हैं जो एक्सरसाइज नहीं करते हैं। सो इफ टुडे हम ऐसा करें कि उन 10 में से कम 3 लोगों को मोटिवेट कर लेना एक्सरसाइज करने के लिए, so this will be kind of preventing those pains for you, at least severe pains for you. Pains तो फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चलते रहते हैं, but severe pain at least हम prevent कर सकते हैं with good exercises. उसके बाद भी होता है तो we have to manage it of course, लेकिन काफी हद तक कर सकते हैं। बिल्कुल, that's kind of yes. So hot and cold packs बहुत ज़्यादा effective हैं। कोल्ड पैक्स अगर इमीडिएट अभी इंजरी हुआ, नया बैक पेन शुरू हुआ, सो बेसिक हम मतलब रफली हम 3 महीने का वो रखते हैं। 3 महीने तक एक्यूट पेन होता है, 3 महीने के बाद क्रॉनिक पेन हो जाता है। सो एक्यूट पेन में कोल्ड पैक्स, क्रॉनिक पेन में हॉट पैक्स, ठीक है, ये बेसिक है ना। देन बहुत सारे जेल्स अवेलेबल हैं, जेल लगाने से भी फायदा मिलता है अगेन, बट ये सिर्फ इससे नहीं मिलता है ना। सो एंड एज आई सेड, सिर्फ प्रिकॉशंस, सिर्फ एक्सरसाइज, सिर्फ मेडिसिन और एक चीज अलग अलग से नहीं, ये पूरे चीजें हम जब एक साथ करेंगे तभी हमें बेहतर आराम मिलेगा, ठीक है। एंड ये सिर्फ बैक पेन के लिए नहीं, नेक पेन कितना कॉमन आजकल तो और ज्यादा बिकॉज ऑफ स्क्रीन यूज, नेक पेन कितना कॉमन है, बट मोस्ट ऑफ वो नेक पेन सर्वाइकल नहीं होते हैं। मोस्ट ऑफ ये वाले जो नेक पेन्स होते हैं, ये होते हैं मांसपेशियों के दर्द। ये हमारे ट्रेपीजियस, हमारे रोम्बॉइड्स, ये सब इतने टाइट हो जाते हैं क्योंकि हम कभी श्रग नहीं करते, ऐसे नहीं करते, हम ऐसे नहीं करते, है ना, हम बस ऐसे करते हैं। सो हमको एक्सरसाइज करना है, हमको यहाँ ये वाली मांसपेशियाँ, डीप मांसपेशियाँ हैं, इनको हम वो मसाज कराने लगते हैं जब हमें दर्द होता है, मसाज भी हेल्प करता है, ऐसा नहीं है।
बट अगर सपोज सर्वाइकल है ना, बहुत बार आप लोग खुद से सर्वाइकल और मांसपेशियों के दर्द में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे, बट सिवियर सर्वाइकल पेन मोस्टली नेक से शुरू होके यहाँ से हाथ में जाता है, ठीक है कई बार, लेकिन यहाँ गर्दन, आजकल मांसपेशियों का दर्द भी यहाँ और यहाँ पर रहता है, हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है, बहुत सारे क्लिनिकल साइंस होते हैं, हम एग्जामिनेशन जो करते हैं उससे पता लगता है, बट सर्वाइकल के लिए भी सिमिलर चीज़ें हैं, 1 2 3 4th इसमें भी हम सर्वाइकल यहाँ पर भी हम छोटा सा इंजेक्शन लगाकर उस पेन को काफ़ी हद तक मतलब 80 to 90% पेन रिलीफ हो जाता है एक बार को, है ना। अगेन आई एम सेइंग एक बार को, कोई मैजिक वॉन्ड नहीं है ये इंजेक्शन कि भाई एक बार घुमाया जीवन भर के लिए दर्द आ रहा, वो आपको एक विंडो देंगे कि आप अब नेक एक्सरसाइजेस करिए, अपने मसल स्ट्रेंथन करिए, सो दैट आप बेहतर इससे मतलब लॉन्ग टर्म से के लिए इससे Fully we can take this injection. Like it's So once for a I year do or not so usually repeat after. them. Okay. So Once a but lifetime. किसी को 6 months के अंदर तो हम कभी भी रिपीट नहीं करते हैं, because of course sometimes we do put in steroids. So steroids को हम locally भी डालेंगे, 6 महीने के अंदर रिपीट करेंगे तो bone density कम होती है, so 6 महीने में रिपीट कर सकते हैं अगर किसी को ज़रूरत हो तो, but most of the times I keep my patients motivated enough, rehab करना है, exercise करना ही है, इंजेक्शन लगा के हमें उसे वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। Then next we come to knee pain. You have knee pain? Yes, very severe. और सबके घुटने रिप्लेस किसने करा लिए? घुटना रिप्लेस हो गया? नहीं हो पाया। हाँ, कराना था हार्ट इश्यूज के कारण, है ना। My बुआ had the similar issue. She was admitted for TKR. I only told her to get admitted, but then she came out some heart issues, है ना। So very common. हमारे को एक एज के बाद कुछ कोमोर्बिडिटीज हो जाती हैं, अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन, कार्डियक इश्यूज, जिसके कारण हम TKR जो कि टोटल नी रिप्लेसमेंट है, घुटने के दर्द का बेस्ट इलाज है, ठीक है, क्योंकि उससे वो क्योर हो जाता है, ठीक है, कि भाई जो घुटना खराब था हमने उसे नया लगा दिया, वो क्योर हो गया, ठीक है। लेकिन इतना सिंपल नहीं है ना, क्योंकि उससे पहले की एक्सरसाइज, फिर घुटना रिप्लेसमेंट, फिर उसके बाद की एक्सरसाइज, इट्स काइंड ऑफ अ प्लान, एटलीस्ट 3-4 मंथ्स का प्लान होता है, जिसमें आपको केवल अपने पे ही ध्यान देना है ना, कि पहले जंप की एक्सरसाइज, फिर घुटना रिप्लेस कराएंगे, पेन होता है, पोस्ट ऑपरेटिव पेन मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जब तक पेन ठीक नहीं होगा आप एक्सरसाइज नहीं कर पाओगे, एक्सरसाइज नहीं कर पाओगे घुटना चलेगा नहीं, पूरा इलाज ये जो सर्जरी करा हुआ वेस्ट हो जाएगा, है ना। सो हमको बेस्ट इज सर्जरी, नहीं हो पाता है जैसे कि आपके केस में, जैसे और बहुत सारे लोग नहीं कराना चाहते, ठीक है, एंड उनके भी अपने अपने रीजंस हैं और जो हम सबको रिस्पेक्ट करने चाहिए, ठीक है, नहीं कराना चाहते, इन दैट केस हम क्या करते हैं, पेन मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट, सो पहले हम स्टीरॉइड्स डालते थे और ये ग्रीस के इंजेक्शंस होते थे, सो फ्रैंकली अब जो स्टडीज कहती हैं ग्रीस के इंजेक्शंस तो एकदम यूजलेस हैं, ठीक है, उससे कुछ भी फायदा नहीं मिलता है, जो हमारा न्यू साइंटिफिक लिटरेचर है, राइट। सो फिर भी डालते हैं, उसमें ग्रीस डाल के कुछ बेहतर नहीं कर दिया है, वो तो दर्द तो है ही, है ना। जैसे मेरे लेफ्ट में स्टेरॉइड दिया था, अब इसमें भी पेन था, लेकिन इट हैज शिफ्टेड टू नाउ राइट साइड। That's because of overuse है ना, हमें एक में दर्द होता है तो हमें दूसरे में कैसे आ जाता है, क्योंकि हम इसको तो रेस्ट दे रहे होते हैं और इसी को यूज कर रहे होते हैं, तो इसमें भी दर्द आ जाता है, कॉमन है ना। स्टिफनेस हाथों तक आने शुरू हो जाए तो व्हाट इज द साइन? सो लुक, स्टिफनेस के कारण और भी बड़े सारे हो सकते हैं, हो सकता है ये दर्द ही स्टिफनेस का कारण नहीं हो। सॉरी, लेडीज में बहुत ज्यादा रह के हैंड पेन है, लेडीज में पेन ज्यादा होते हैं, है ना, ऐसे बोलते हैं मर्द को दर्द नहीं होता, बट दिस इज एक्चुअली ट्रू, दैट्स बिकॉज फीमेल्स आर मोर प्रोन टू पेन, राइट। हमारे मेल्स एंड फीमेल्स के ब्रेन अलग हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, हम कितना भी सेम होने की कोशिश करें, वी आर नॉट सेम, हमारे अलग अलग ब्रेन है, फीमेल्स आर मोर प्रोन टू पेन्स, फीमेल्स को कितनी फीमेल्स मिली हैं आपको जिनको जनरलाइज बॉडी एक्स होता है, कि सब जगह दर्द होता है, यहाँ पे भी दर्द है, यहाँ पे भी दर्द है, जहाँ टच करो वहीं दर्द है ना। सो दिस इज कॉमन, दिस इज अ ट्रू थिंग, इट्स नॉट इन योर ब्रेन, आप कितनी सीटी करा लो, MRI करा लो, सब नॉर्मल है, लेकिन पेन तो है, है ना। सो पेन, एवरी पेन इज रियल पेन, देयर इज नो पेन विच वी कैन से कि दिमाग में अरे कुछ है नहीं, देखो सीटी नॉर्मल है, MRI नॉर्मल है, क्या है, कुछ नॉर्मल है। तो excuse me, so what about the stem cell treatment? Yes, these are upcoming things.
stem Yeah. cell. But is it proven? So it's still हमें evidence अभी मिल रहा है इसके बारे में. No, Stem but should we go for stem cell treatment or knee replacement? for knee. So knee replacement is the gold standard. ठीक है, Okay. as I said, it cures. ठीक है. Right. Then stem cell से ज़्यादा commonly जो हम pain physicians करते हैं, which is prolotherapy और PRP therapy. Right? भी कोई सर्जरी ऐसी नहीं है जिसमें 0% कॉम्प्लिकेशन है या 0% साइड इफेक्ट है ना. इट्स अ मेजर सर्जरी. आपकी पूरी 2 हड्डियां काट के नए मेटल लगा रहे हैं. हो सकते हैं कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं बहुत लोगों को, राइट. सो बट द बेस्ट फॉर दिस, आई कम टू योर स्टेम सेल वाला थिंग. Right. सो स्टेम सेल और पीआरपी और प्रोलोथेरेपी ये सब चीजें यूजफुल हैं ग्रेड 1 ग्रेड 2. इसके 4 स्टेजेस होते हैं घुटने खराब होने के कि कितना डिजेनरेशन है. स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4. सो स्टेज 1 एंड 2 में हमें प्रोलोथेरेपी कराना चाहिए. उससे ये डिजेनरेटिव डिजीज है तो हाँ उसमें हम रीजेनरेटिव थेरेपी करते हैं. मतलब हम आप ही के ब्लड से पीआरपी बना के उसको घुटने में डाल देंगे तो वो जो डिजेनरेटिव प्रोसेस है उसको बेहतर करके रीजेनरेशन की तरफ चलता है. More successful it is. सो Percentage. Huh? Percentage is how? Percentage wise, most of the patients, like I would say 70 to 80% of the patients will get some relief. Okay. Right? Some relief. Some, yeah, no injection. In medicine, 1 + 1 is not 2. You cannot say अगर हमने replacement ही 100% नहीं कर सकता है तो कोई भी injection 100% कैसे काम कर सकता है. कोई you want to say something? Yes, I want to ask one. एक चीज बताइए कि आज से 20-25 साल पहले घुटनों में कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी आमतौर पर, लेकिन अब जो केसेस हैं घुटनों की क्यों प्रॉब्लम होती जा रही है? क्योंकि What are the reasons कि आजकल घुटनों के हर आदमी को घुटने की भी प्रॉब्लम? सो घुटने की प्रॉब्लम्स तब भी थी जब से हम मंकी से ह्यूमन बीइंग बने हैं ना. जब से हम 2 पैरों पे चलने शुरू हुए हैं घुटने के प्रॉब्लम तब से है ना. क्योंकि हम सालों से हमारे घुटने ये बोझ उठाते हैं. लेकिन पहले कम क्यों होती थी? 1, विटामिन डी सन एक्सपोजर बहुत ज़्यादा था. ठीक है. सेकंड, वी वर ऑल एक्टिव पीपल. ये मांसपेशियां हमारी चलती रहती थी. अभी सेडेंटरी लाइफस्टाइल, पुअर सन एक्सपोजर, डेफिशिएंसीज, अभी उस प्रकार का खाना भी नहीं है, न्यूट्रिशनल थिंग्स, ऑल दीज एनवायरमेंटल फैक्टर्स, इन सब के कारण अब ये हमें ज़्यादा दिखता भी है. सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग, आप गांव में जाओ कभी भी, है ना, वहाँ पर आंटियाँ अंकल सब ऐसे ऐसे चलने लगेंगे लेकिन घुटना कुछ ठीक नहीं कराएंगे. क्या है, घुटना उनका अकड़ गया है, वो ऐसे ऐसे चलने लगेंगे. लेकिन उनको नहीं पता कि उन्हें घुटने की प्रॉब्लम है. उन्होंने अपना जीवन ही बदल दिया है घुटने के दर्द से. बट हम एक फैमिली से जनरलाइज नहीं कर सकते चीजों को, है ना. सो बट यस, लाइफस्टाइल इज डेफिनेट, लाइफस्टाइल इज मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज जिसकी वजह से कैंसर्स का इंसिडेंस बढ़ रहा है, जिसकी वजह से हर एक जो बीमारी का गैस्ट्रो जीआई के प्रॉब्लम्स कितने बढ़ रहे हैं. एवरीवन इज हैविंग कुछ डिस्कम्फर्ट, ये सब IBS चल रहा है. Weight is also disadvantage. Absolutely, Oh, yeah. most important Most thing. important, yeah. जितना देखो हमारी कमर, कूल्हा, घुटना क्यों खराब होता है? Weight की वजन वजह से। की वजह से. सो वजन तो सारी चीजों का जड़ है, चाहे वो हार्ट का प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, BP है, या ये सब मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम है. सभी चीजों का एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण हमारा वेट है, बहुत इंपॉर्टेंट कारण. तो वी वर टॉकिंग अबाउट पेन एंड यू वर सेइंग कि नी पेन, है ना. सो नी पेन जिसका सर्जरी नहीं हो सकता है तो पहले ये सब चीजें स्टेरॉइड ये वो. बट अभी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है ना वो है कि हम स्पेशली स्टेज 3 एंड स्टेज 4 वालों के लिए कि हम आसपास की घुटने की नसों को सुन्न कर दें. इसका मतलब ये नहीं कि घुटना सुन्न हो जाएगा, हम चल नहीं पाएंगे, केवल दर्द की नसों को सुन्न कर सकते हैं. दिस इज कॉल्ड जेनिकुलर नर्व कूल्ड RFA. कूल्ड RFA इज द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी. पहले हम स्टैंडर्ड RFA करते थे. व्हेन आई वाज लर्निंग वी वर डूइंग स्टैंडर्ड RFA. अभी वी डू कूल्ड RFA, राइट. सो दिस इज सच एन अमेजिंग टेक्नोलॉजी कि ये मतलब अगेन आई वुड से कि ऐसे नहीं है कि इससे 100% आराम होता है, बट जीवन चलने लगता है. ठीक है कि भाई ये छोटा सा प्रोसीजर है एंड वी डू दैट अराउंड, इसके अराउंड 3 नसों को ब्लॉक कर दिया,
बेहतर हो गया, पेन काफी हद तक 70-80% तक पेन आराम हो जाता है, जीवन चलने लगता है। हमारा जो क्वालिटी ऑफ लाइफ इसके कारण खराब हो रही थी कि हम मॉल्स जाना बंद कर दिया है, हम कहीं घूमने नहीं जाते, हम सोशल गैदरिंग्स में नहीं जाते, तो ये सब चीजें चलने लगती हैं, राइट। सो नी पेन, इसी प्रकार से अभी पेन मेडिसिन ना एक अलग फील्ड है ना। available now in India? Absolutely, we're doing it day in day out. It's not, it's available everywhere, and of course here we have a good. ब्लॉक कर देते मीन्स सिग्नल ब्रेन को नहीं जा रहा। हाँ, तो वो तो है, घुटना तो खराब है, लेकिन बिल्कुल जी बस बिल्कुल। ब्लॉक हाँ, There's so only signal pain नहीं। management it is होता है, pain management. पेन मैनेजमेंट और वॉकिंग में क्या डिफरेंस आ हाँ। जाता है? So चलने most में of the time से जैसे तो- वो 100 meters चल पाते थे, Right. it increases to quite a lot that you know, देखो पेन को ना हम कभी भी ना ऐसे नहीं मेजर कर सकते कि भाई कितना आराम हो गया 50%, ठीक है। हम हमेशा गोल्स के हिसाब से पेन को देखते हैं कि कितना इफेक्टिव है। एक इंसान को प्रॉब्लम था कि वो अपने बेड से उठ के वॉशरूम नहीं जा सकता था, अगर उसका वो अचीव हो गया, गुड पेन रिलीफ, सेटिस्फैक्ट्री पेन रिलीफ। एक इंसान अपने घर से मॉल घूमने जाना चाहता है, अगर उसको वो वॉशरूम तो जा रहा है, अपने घर पे भी घूम रहा है, लेकिन वो अगर मॉल नहीं जा पा रहा है ना, उसका गोल अचीव नहीं हुआ, अनसेटिस्फैक्ट्री पेन सीवियर रिलीफ। केसेस में कर रहे हैं, हाँ? सीवियर पेन ये नो सिवियर केसेस में नहीं, जो भी एडवांस्ड ये स्टेज 3 स्टेज 4 की ऑस्टियोआर्थराइटिस है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स घुटने का पेन ना बैठे बैठे नहीं होता है, खड़े होने पे, प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग पे, चलने पे ही होता है ना। बैठने पे तो हमारे घुटना जब वजन ही नहीं उठा रहा तो वो पेन नहीं करता है ना। सो ये मोस्टली हम करते हैं जब भी आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब हो रही है ना। पेन मैनेजमेंट का एक इम्पॉर्टेंट इंडिकेशन है, व्हेनेवर पेन इज बॉदरिंग आवर क्वालिटी ऑफ लाइफ, और उसको रियलाइज करना, हम अपने जीवन को ही उसके हिसाब से ढाल लेते हैं कि ठीक है यार, अब मैं नहीं जा सकती, अब मैं वहाँ बहुत देर खड़ा रहना पड़ेगा, मैं नहीं जाती, रहने दो, है ना। तो हमने जीवन को नहीं ढालना है, हमने पेन जो कारण है उसको बेहतर करना है। हमारे पास इतने एडवांस टेक्नोलॉजी है अभी पेन मैनेज करने के, दैट ईच एंड एवरी काइंड ऑफ पेन is at least 70 to 80% manageable. Curable. Yes, I won't say curable. Is it curable? Manageable. It can improve your quality of life like anything. But the pain management is now upcoming thing, and everybody has to use that thing, क्योंकि हम Indians वैसे भी थोड़े से laid back in terms of pain, ठीक है, चल रहा है, चलने दो। So हमको थोड़ा सा अपने लिए अजवाइन खा लो, अजवाइन खा लो और बड़े बड़े चीजें हो जाएगा सब, राइट, है ना। सो फ्रॉम हेड टू टो, नेक पेन, बैक पेन, माइग्रेन्स एंड फेशियल पेन्स कितना कॉमन है। किसी ने ट्राइजेमिनल पेशेंट्स, दैट इज वन ऑफ द वर्स्ट पेन्स नोन टू मैनकाइंड। What is that pain? ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया, फेस पे बर्निंग शॉक्स आते हैं, शॉक्स एंड एपिसोडिक आता है एकदम से, मतलब 2 सेकंड का शॉक एंड देन आराम, फिर और ऐसे। सो इसमें ट्राइजेमिनल नर्व एक हमारे ब्रेन के अंदर उसका गैंग्लियन है, वहां पर जो हम एमआरआई कराते हैं मोस्टली नॉर्मल आएगा, ठीक है, या फिर कभी कभी उसमें एक वेसल लूप दिखती है। सो लूप दिखे या नहीं दिखे, बट वो मोस्ट कॉमनली उसका कोई कारण नहीं होता है, बस वो जो नर्व है वो एक्स्ट्रा फायर कर रही है जिसके कारण ये दर्द आ रहा है। एंड दीज थिंग्स कैन बी मैनेजेबल। हम एक छोटे से रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन, जो जैसे कूल्ड आरएफ हम नी का करते हैं वैसे इसका भी करते हैं, रेडियो फ्रिक्वेंसी। सो रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन करके एंड पेशेंट्स गेट लाइक दिस इज मैजिकल रिलीफ। ये वाला इसमें जो होता है ये मैजिकल रिलीफ होता है, लाइक व्हाट, ये क्या हो गया। सो दिस मतलब ये सब पेन्स, फेशियल पेन्स, इसके अलावा और बड़े सारे टाइप के फेशियल पेन्स होते हैं। ट्राइजेमिनल इज प्रोटोटाइप की भाई ये सबसे कॉमन है, बट अदरवाइज कितने पेशेंट्स को ना पोस्ट हर्पेटिक न्यूराल्जिया, हैव यू सीन किसी को हर्पीज के बाद, किसी को चेस्ट का, बैक का हर्पीज, माय सिस्टर है ना, शोल्डर्स पे। सो कितना, और वो ठीक हो जाता है, अभी कुछ नहीं दिख रहा, सब कुछ सही दिख रहा है, लेकिन दे हैव बर्निंग, वो कपड़ा नहीं डाल सकते हैं यहाँ पर, देख उसको टच भी होता है, हवा का झोंका भी लगता है। सेम सारे न्यूराल्जिया जो नर्व पेन्स होते हैं ना, उसमें ना नस मानो की जो नर्व्स हैं, एक तो खून की नसें होती हैं, है ना, एक होती है नर्व्स जो हमारे पेन, टच, ये सब सेंसेशन लेके जाती हैं, ये एक इलेक्ट्रिक वायर के जैसे होती हैं। इनको कुछ भी अगर एक्स्ट्रा किसी ने ट्रिगर किया
तो ये करंट फेंकती है ना, जैसे शियाटिका में करंट जाता है, जैसे फेशियल पेन्स में करंट जाता है, से पोस्ट हर्पेटिक न्यूरalgia में करंट मारते हैं. सो ये कुछ भी अगर इन्हें टच भी होता है, ट्राइजेमिनल न्यूरalgia के पेशेंट्स ब्रश नहीं कर पाते. आई हैव सीन अ पेशेंट हु केम टू मी 1 month से उन्होंने ब्रश ही नहीं किया है बिकॉज शी कैन नॉट डू इट. दे आर नॉट एबल टू च्यू, दे आर नॉट एबल टू ईट जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पेन. और वो मोस्टली सबसे पहले डेंटिस्ट के पास घूमते रहते हैं. उनको पहले ये लगता है ये दांत का दर्द है, दांत में ही दर्द है. उनके 5-5, 6-6 RCTs हो चुके होते हैं, 5-6 दांत उखड़ चुके होते हैं जब तक वो पेन फिजिशियन के पास पहुंचते हैं. सो एंड दीज आर सच मैनेजेबल थिंग्स. ऑल वी नीड इज अवेयरनेस कि भाई ये ट्रीटेबल है, इसको हम ठीक कर सकते हैं. ट्राइजेमिनल न्यूरalgia कैन बी समटाइम्स क्योरेबल ऑल्सो. दैट एक बार ही वो हो जाता है, देन कुछ समय मेडिकेशंस लेके मोस्टली वो वापस नहीं भी आता, बट आ भी सकता है, ऐसा नहीं है. कई बार वापस भी आ सकता है तो हम उसे रिपीट कर सकते हैं. तो बट दिस इज वेरी इजीली मैनेजेबल थिंग्स. लाइक सो फेशियल पेन्स, नेक पेन, मांसपेशियों का दर्द मैंने आप लोग को बताया, कमर का दर्द, ऑल दीज थिंग्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हम लोग को जानना. एक सेकेंड और चीज पैलिएटिव केयर इज इट्स लाइक मानो कि पैलिएटिव केयर एक फिलॉसफी है. पैलिएटिव केयर मतलब ऐसे नहीं है कि केवल मैं ही पैलिएटिव केयर डॉक्टर हूँ. The person who are seriously ill, they are given this. Yes. So सारे डॉक्टर्स प्राइमरी पैलिएटिव केयर फिजिशियंस होते हैं. मैं स्पेशलिस्ट पैलिएटिव केयर डॉक्टर हूँ, राइट, क्योंकि आई स्पेशलाइज इन पैलिएटिव केयर. बट सारे डॉक्टर्स पैलिएटिव केयर फिजिशियंस होते हैं क्योंकि पैलिएटिव केयर एक फिलॉसफी है टू ट्रीट अ पर्सन एज अ होल, राइट, to take into account his physical, psychological, social, spiritual aspects of any patient who has any kind of life limiting disorder, मतलब या life threatening problem, जैसे कि कैंसर हो सकता है, जैसे all these chronic kidney problems जो patients dialysis पे होते हैं, है ना. सो उन सब को भी ये मतलब डायलिसिस एक नेवर एंडिंग चीज है, वो जीवन भर चलते ही जाना है ना. terminally ill problem. सो टर्मिनली इल उसका एक छोटा सा हिस्सा है. मतलब एक तो जैसे सपोज किसी को कैंसर डायग्नोज होता है ना, तो It's only a matter of time. No, not always. Let me come to it. कि किसी को सपोज कैंसर डायग्नोज होता है तो हम जैसे ही उस मरीज को पता लगता है तो केवल मरीज नहीं, पूरा फैमिली शैटर्ड, राइट. तो एक इंसान को नहीं होता है, पूरा फैमिली शैटर हो जाता है. सो हाउ वी ब्रेक दैट न्यूज टू द पेशेंट एंड द फैमिली, दैट्स पैलिएशन. हम कितना एम्पैथेटिकली उसको ये बता सकते हैं, that is also palliation, right? No, that's a part of it. मतलब ये जब हम उसको अच्छे से बताएंगे empathetically, so ये supportive care हो गया, ठीक है, कि भाई उसके social aspects क्या है, सारे चीज़ों को consider करते हुए. Then जब उनका कैंसर का ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ तो उनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, पेन, नोजिया, वॉमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, ये सारे चीज़ें कुछ उनको चलते रहता है. तो सिम्टम मैनेजमेंट है ना. सो पैलिएटिव केयर का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है सिम्टम मैनेजमेंट, ताकि वो कैंसर डायरेक्टेड थेरेपी बेहतर ले पाएं, ठीक है. देन पैलिएटिव केयर का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है कोलैबोरेशन विद अदर कंसल्टेंट्स, ठीक है. मैनी टाइम्स पेशेंट्स जब मेरे पास आते हैं वो मुझे बहुत सारे प्रॉब्लम्स बताते हैं कि मेरे को फाइनेंशियल इश्यूज हैं, मैं नहीं अफोर्ड कर पा रहा हूँ ये सारे चीज़ें, मेरे को सोशल प्रॉब्लम है, मेरे को आने जाने के लिए कोई है नहीं, मैं कैसे आऊँ हर हफ्ते मेरे को कीमो के लिए आना है, आई कांट कम, राइट. सो ऑल दीज थिंग्स कोलैबोरेटिंग विद द प्राइमरी फिजिशियन, कम्युनिकेशन व्हेन देयर इज अ चेंज ऑफ प्लान. लाइक अगर पहले तो पेशेंट का सपोज स्टेज 3 टाइप का कैंसर हो जाएगा एंड फिर हमने देखा कि 2 लाइन कीमो लगने के बाद वो प्रोग्रेस हो गया, नहीं इफेक्ट आया उनका. सो जब वो ये जो ट्रांजिशन है कि भाई पहले उनको लग रहा था हाँ मैं ठीक हो जाऊंगा एंड देन सडनली वी फील कि अभी तो प्रोग्रेस हो गया है, अभी ये क्योर की स्टेज से हम बाहर निकल चुके हैं, इन दैट केस अगेन पैलिएटिव केयर, राइट. सो ये ट्रांजिशन होता है
पहले जो प्राइमरी टीम है, सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, उनका रोल ज़्यादा होता है, एंड देन जैसे जैसे हम प्रोग्रेशन की तरफ जाते हैं उनका रोल कम हो जाता है और पैलिएटिव केयर का रोल बढ़ जाता है, ठीक है। जब हमें केवल सिम्टम मैनेजमेंट चाहिए, होलिस्टिक केयर चाहिए, राइट, एंड उसका एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है एंड ऑफ लाइफ केयर, टर्मिनल केयर जो आप कह रहे हैं, राइट, टर्मिनल केयर। सो वो इसका एक हिस्सा है, बट पैलिएटिव केयर स्टार्ट हो जाती है राइट फ्रॉम द बिगनिंग, है ना, क्योंकि मेरा काम ही पैलिएटिव केयर है, समझ लो। लेकिन मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट का काम मेजरली डिजीज डायरेक्टेड थेरेपी है। उन्हें इंसान से ज़्यादा डिजीज दिखता है, उन्हें पेट सीटी दिखता है, उन्हें TLC काउंट्स दिखते हैं, हमको वो सेकेंडरी है, हमारे को वो दिखता है, लेकिन हमारे लिए वो सेकेंडरी, प्राइमरी इज पेशेंट, हाउ इज ही डूइंग, वो कैसे मैनेज कर पा रहे हैं। सो देयर इज जस्ट अ लिटिल डिफरेंस। सो वो भी प्राइमरी पैलिएटिव केयर फिजिशियन है, एंड सभी ऑन्कोलॉजिस्ट बहुत क्लोज होते हैं अपने पेशेंट्स के, और सभी उनको एज ए फैमिली ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। बट पैलिएटिव केयर इज, उसको एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सपोर्ट मानिए, है ना, ड्यूरिंग योर ट्रीटमेंट फॉर एनी काइंड ऑफ लाइफ लिमिटिंग इलनेस, चाहे वो किडनी फेलियर है, रेस्पिरेटरी फेलियर है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स, कितने COPD के जो पेशेंट्स होते हैं वो कितने ज़्यादा ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स में होते हैं कि वो बारी बारी ICU जाते हैं, ICU से बाहर आते हैं, फिर भी उन्हें सांस फूलती रहती है। तो उनके सारे जो रेस्पिरेटरी मेडिसिन के ट्रीटमेंट चलने हो तो चल चुके हैं, चल रहे हैं, है ना, लेकिन ब्रीदिंग प्रॉब्लम है तो उन्हें सिम्टम मैनेजमेंट चाहिए है, वो कौन प्रोवाइड करेगा? पैलिएटिव मेडिसिन, राइट। सो सिम्टम मैनेजमेंट के स्पेशलिस्ट होते हैं पैलिएटिव मेडिसिन डॉक्टर्स, और उनके साथ साथ ही आपका प्राइमरी टीम का ट्रीटमेंट चलता रहता है। ऐसे नहीं है कि आप पैलिएटिव मेडिसिन को दिखा रहे हैं तो आपका रेस्पी डॉक्टर नहीं देखेंगे या आपके ऑन्कोलॉजिस्ट नहीं देखेंगे, वो साथ साथ चलते रहते हैं। बट पैलिएटिव मेडिसिन प्रोवाइड्स एन एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सपोर्ट कि आप बेहतर क्वालिटी ऑफ लाइफ जी पाएं। केयर गिवर कंसर्न्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. We will start soon a caregiver support group. I used to do it in my previous hospital. So caregiver support is so important. Caregivers are actually the unsung heroes. उन सारे बहुत एम्पथाइज करते हैं, बेचारा मरीज, इसको ये उसको वो, और जो केयर गिवर पूरी पूरी रात नहीं सोए हैं क्योंकि वो नहीं सो पा रहे हैं, एंड देन वो तो दिन में सो लेते हैं, नाउ द केयर गिवर उसको काम पे भी जाना है, उसको सब चीज़ें करनी है, उसको घर भी देखना है, एंड अगेन रात हो जाती है, एंड अगेन मरीज रात को नहीं सो रहे हैं. सो आई सीन केयर गिवर्स हु हैव नॉट स्लेप्ट फॉर नाइट्स टुगेदर. They become serious patients. They need support. Sure. And who asks them कि तुमने खाना खाया कि नहीं खाया? Who asks them कि तुम सोए हो कि नहीं सोए हो? And who tells them कि एक मरीज के आसपास ना 5 लोग ऐसे बैठे रहते हैं कि उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि भाई हमें करना क्या है इनके लिए, और 5 लोग नहीं सो रहे. So telling them, just इतना भी हम उन्हें बता देना कि एक एक करके बैठो, आप 4 लोग सो जाओ, आप एक इंसान उनके साथ बैठा है ना, क्योंकि उन्हें गिल्ट होता है कि यार हम कैसे सो जाएं, वो देखो बेचारे वो नहीं सो पा रहे हैं, उनको इतना सांस का तकलीफ हो रहा है, उनको इतना दर्द हो रहा है. सो केयर गिवर्स नीड सपोर्ट, एंड वी ऑल एज सोसाइटी, वी ऑल एज एज ह्यूमैनिटी, हम लोग को उनको सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि पैलिएटिव केयर का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है वॉलंटियर्स, राइट. सो वॉलंटियर्स होते हैं जो कि मदद कर सकते हैं. आप अपना हफ्ते का अगर 1 घंटा भी निकाल कर किसी पेशेंट को सपोज हेल्प कर दो, उनके केयर गिवर्स को रिलीव कर दो कि आप 1 घंटा सो जाओ, आई विल टेक केयर, राइट. सो दैट हेल्प्स, राइट. वो 1 घंटा वो इंसान चिंता फ्री होकर सो सकता है, राइट. सो पैलिएटिव केयर इज अ फिलॉसफी. पैलिएटिव केयर इज नॉट अ फील्ड ऑफ मेडिसिन, राइट. सो पैलिएटिव केयर टीम जो होती है उसमें डॉक्टर होते हैं जो पैलिएटिव मेडिसिन एक्सपर्ट होते हैं. Then we have a nurse who specializes in palliative medicine. Then we have a team of physiotherapists, dietitians, specialist dietitians for palliative patients. एक palliative patient जिसको डायबिटीज़ है तो उसको स्ट्रिक्ट डायबिटीज़ कंट्रोल की ज़रूरत नहीं है ना. आप उसे बोलो नहीं चीनी नहीं मिलेगी, आइसक्रीम नहीं मिलेगी, हलवा नहीं मिलेगा. तो डायबिटीज़ जो प्रॉब्लम्स करता है लॉन्ग टर्म में करता है ना. अगर हमें पता है उनका लाइफ स्पैन ही लिमिटेड है, लेट देम हैव व्हाट दे वांट. इट्स ओके, आइसक्रीम खाओ. That's right, I agree with you entirely. हाँ, I agree. Everybody has to agree. Right? So
दिस इज सो इम्पोर्टेंट कि हम ये सारे चीजें रिकॉग्नाइज करें, है ना. देन हम आ रहे थे एक लास्ट पॉइंट पे, एंड ऑफ लाइफ केयर. हु ऑल इज स्कैर्ड ऑफ डेथ हियर? नो डोंट बिलीव, टेल मी, आर यू स्कैर्ड ऑफ डेथ? मैं भूल जाऊंगी नहीं तो. दैट रिमाइंड्स मी ऑफ टेलिंग यू वन मोर थिंग अबाउट पेन, है ना, कि 80 के बाद, है ना, हमारे को एज 80s के बाद ही मोस्टली, बट उससे पहले भी हो सकता है, जिनको अगर पार्किंसंस है या अल्जाइमर्स है, डिमेंशिया है, ये भी सारे तो ये जिनको होते हैं. सो अगेन ऐसे पेशेंट्स को क्या दर्द नहीं होता है? क्यों नहीं हुई? है ना, लेकिन वो वर्बलाइज नहीं कर पाते, उनको स्पीच इश्यूज होते हैं, वो बता ही नहीं पाते हैं. सो इन सब पेशेंट्स में जो बेड बाउंड पेशेंट्स हैं, जो उठ नहीं सकते हैं, जो अपने से नहीं हिल सकते हैं, बात नहीं कर सकते, तो ऐसे में पेशेंट्स का पेन हाईली अंडर डायग्नोज्ड, हाईली अंडर ट्रीटेड. हम सबको उनको पेन मैनेज करना बहुत इम्पोर्टेंट है. तो कैसे असेस करें उनका पेन हम? थैंक यू सो मच फारस. पेन है वो लोग का कैसे मैनेज करें? कैसे पता लगता है? हमारे लव्ड वंस होते हैं, हम उन्हें देख के भी बता देते हैं कि यार इसको दर्द हो रहा है ना. खाना नहीं खा रहे हैं, नॉर्मल रूटीन जो है वो चेंज हो रहा है. कंफ्यूजन, कितने ऐसे वाले पेशेंट्स कंफ्यूज रहते हैं ना, दिन है रात है, उनको समझ में नहीं आ रहा, उनको समय नहीं समझ में आ रहा, कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, वो मेरा बेटा है, वो मेरी बेटी है, वो पिछले पुराने, वो मेरी माँ है, और ऐसे ऐसे पुराने चीजें उनको याद आती है ना. सो ये सब इनमें पेन असेसमेंट की चीजें होती है. वी कैन असेस, स्पेशली कैसे पता लगेगा? माथे पे भौएं चढ़े रहना, हाथ पैर को टाइट करके रखना, ऐसे मोर्निंग आवाजें निकालना, ये सब डिस्ट्रेस के साइंस होते हैं. ठीक है, जो हमको ध्यान रखने चाहिए. और जो इंसान बता नहीं सकता है तो उसको हमें ये साइंस देखकर हम पता लगा सकते हैं कि उनको दर्द है और उनको पेन मैनेजमेंट की ज़रूरत है. राइट. सो या अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट चीज़ बिफोर आई फॉरगेट, हम टर्मिनल केयर पे आएंगे, बट कि फॉल प्रिवेंशन, फॉल प्रिवेंशन आज सभी लोगों के लिए, हम सभी की हड्डियां वीक है, हमने ये मान लिया है. ठीक है, तो हड्डी के लिए हम बहुत ज्यादा कुछ अंदर नहीं डाल सकते, मतलब डाल रहे हैं, कैल्शियम खा रहे हैं, विटामिन डी खा रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, सब चीज कर रहे हैं, लेकिन हम क्या कर सकते हैं फ्रैक्चर से बचने के लिए? गिरना नहीं है. ठीक है, किस किस को खराब लगता है स्टिक कैरी करना? मैं क्यों कैरी करूं स्टिक? मैं चल सकता हूं. नेवर कैरी स्टिक. नेवर कैरी स्टिक. You try to carry. Who all feels I will never carry stick? I will never carry stick. You will never carry stick. जरूरत पड़ेगी तब करेंगे. जरूरत पड़ेगी तो करेंगे. और किस किस को भैया मैं स्टिक नहीं कैरी करूंगा, ना मैं व्हील चेयर में बैठूंगा, ना मैं स्टिक कैरी करूंगा. है ना. जब तक जरूरत नहीं है बिल्कुल मत करो, लेकिन 1% 1% भी डाउट है ना यार, शायद कभी कभी मैं ट्रिप हो जाता हूँ. कैरी अ स्टिक, कैरी अ वॉकिंग एड, कैरी अ वॉकर. जिसको स्टिक चाहिए उसे वॉकर यूज करना चाहिए मेरे हिसाब से. तो गिरना नहीं है. कौन कहेगा हाँ देखो जी ये तो बुड्ढे हो गए, देखो जी ये तो वॉकर लेके चलते हैं अब, हैं? तो लेकिन वो इंसान, अगर आप गिर जाओगे, आपकी केयर करने वो तो नहीं आ रहा जो बोल रहा है. ठीक है, सही बात है ना. तो जिसके डर से हम नहीं करते वो बिल्कुल भी हमारी केयर नहीं करता है. तो अपनी केयर एक ही इंसान कर सकता है, हम खुद. तो प्रिवेंट फॉल्स हमें यूज करना है. अगर हमको डर लगता है, डर लगे ना लगे, आई थिंक एवरीबडी शुड कैरी सम वॉकिंग एड कि भाई हम गिर ना जाए, क्योंकि एक बार गिर गए इस उम्र में भाई पूरे का फ्रैक्चर की रिकवरी बड़ी पूरी. Especially take care in the bathroom. Bathrooms, yes. I was coming to it. Have your extra rails सबने लगा रखी बाथरूम में. Data shows 80% of accident fall is in the bathroom only. Yeah, Absolutely. you're right. There is anti-skid mats रखिए वहाँ बाथरूम में, है ना. ग्रैब बार्स वहाँ पर खड़े होने के लिए, पॉट सीट से खड़े होने के लिए बार्स चाहिए. इवन जहाँ नहा रहे हो वहाँ पर बार्स चाहिए. यूज टॉलर स्टूल, छोटे स्टूल पे हमको नहीं बैठना है, या फिर शावर लें,
है ना, शावर पकड़ के शावर लेकर देखो भाई, हम फील करें ना करें, हमारा ब्रेन स्लो होता है, हमारे रिफ्लेक्सेस स्लो होते हैं उम्र के साथ, और हमको उसको प्रिवेंट ही कर सकते हैं। एक बारी गिर गए तो गिर गए, कहीं ना कहीं तो चोट लगेगी, लगेगी, कोई ना कोई हड्डी तो नहीं टूटे, बट फिर भी हमें उसे प्रिवेंट कर सकते हैं, क्योंकि उसे ट्रीट करना, उसे क्योर करना बहुत कम्बरसम है, हम लोग को प्रिवेंट ही करना है। राइट, सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, फॉल प्रिवेंशन। किसी भी हालत में हमको नहीं गिरना नहीं है, बस ऊबड़ खाबड़ जगह है, होल्ड हैंड। कोई अगर अनजान इंसान बेनिया भाई पकड़ ले, एक बार चलना है मेरे को, ठीक है, कोई मना नहीं करता है ऐसे चीजों में, isn't it? किसी को भी बोल दो कि मेरे को रोड क्रॉस करा दो, या थोड़ा ऊबड़ खाबड़ लग रहा है, मेरे को डर लग रहा है, बैलेंस इश्यूज होते हैं, people will help you. they will help you and they will be happy to help, absolutely, right? So ask for help, never be ashamed of asking for help। पड़ोसी से, आसपास से, अपने बच्चों से, अपने ग्रैंड चिल्ड्रन से, सर्वेंट से, किसी से भी। हम लोग सर्वेंट की भी चिंता करते हैं, अरे यार अभी तो सोया, अब मैं इसे उठाऊं, मेरे को वॉशरूम लेकर जा, है ना। सो आस्क फॉर हेल्प, राइट। सो या एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ द थिंग्स मैंने कहा। अगेन एक और चीज, पैलिएटिव केयर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये सब न्यूरोलॉजिकल केसेस में, पार्किंसंस, डिमेंशिया, स्ट्रोक, राइट, स्ट्रोक के पेशेंट्स, हेमीपेरेसिस हो गया या पैराप्लीजिया हो गया, दोनों टांग नहीं चलते हैं या चारों लिम्स नहीं चलते, ये सब पेशेंट्स में भी पैलिएटिव केयर बहुत इंपॉर्टेंट है। they need that extra support to be listened to see कि हम क्या बेहतर कर सकते हैं। प्रिवेंशन ऑफ बेड सोर्स है ना, वो पैलिएटिव केयर का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है कि बेड सोर नहीं हो, कैसे हम केयर करें। एक बेड बाउंड कोई पेशेंट है तो उनको हमें कैसे केयर करना है, बेड सोर प्रिवेंट करने हैं। डीवीटी जो खून का चक्का जम जाता है उसको प्रिवेंट करना है बेड बाउंड पेशेंट्स में। ये सारे चीज़ों में कई बार ऐसे नहीं लगता है कि मतलब बहुत सारे डॉक्टर्स भी मतलब भेज देंगे कि जाओ ले जाओ सेवा करो, पर सेवा का क्या अर्थ है कि भाई कैसे करनी है सेवा, है ना। सेवा करने के लिए हम रेडी हैं, बट कैसे करनी है। सो आई थिंक दैट क्लैरिटी कम्स विद पैलिएटिव मेडिसिन। पैलिएटिव मेडिसिन इज अ लिटिल बिट ऑफ कार्डियोलॉजी, अ लिटिल बिट ऑफ respiratory, a little bit of everything, a little bit of gastro, क्योंकि all these patients इनको कुछ ना कुछ constipation होता है, mostly bed bound patients are constipated, है ना। So ये सारी चीजें palliative। अब क्योंकि एक ऐसे मरीज को आप बोलो इनको ejection fraction 35% है, इनको कार्डियोलॉजिस्ट के पास लेकर जाओ, इनका क्रिएटिनिन 1.4 हो गया, इनको नेफ्रोलॉजिस्ट के पास लेके जाओ, नहीं पॉसिबल है। आप उस इंसान को 4 जगह नहीं लेकर जा सकते हो। You need to have somebody जो ये सारे चीजें आप लोग के लिए देखे, समझे, और एक्स्ट्रा वो उनको 50 मेडिसिन दिन की नहीं ले सकता है वो इंसान। वो खाना तो खा नहीं रहा है, वो 50 दवाइयाँ कैसे अंदर डालेगा। सो वी हैव टू कट डाउन ऑन सर्टेन मेडिकेशंस। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आयरन चल रहा है, फोलिक एसिड चल रहा है, A to Z चल रहा है, एक विवॉन भी ले रहे हैं, पी भी रहे हैं, खा भी रहे हैं। सो ये सारी चीजें हमें कट डाउन करने पड़ेंगे, उनकी दवाइयाँ कम कर, बहुत सारी चीजें होती हैं ओवरऑल केयर में जिसमें पैलिएटिव मेडिसिन आपको मदद कर सकता है। राइट, नाउ वी कम टू द लास्ट पॉइंट। हम पूछ रहे थे डेथ से कौन कौन डरता है। वील गेट बैक देयर। डर लगता है? नहीं लगता है। नहीं, हाथ वो उठाओ जिसको डर लगता है। कौन डेथ से डरता है? नहीं जी नहीं, झूठ बोल रहे हैं, हर कोई डरता है, हर कोई डरता है। है जी, बेड रिडन होने से डरता है ना, से कोई नहीं डरता। सो डेथ पता नहीं कोई नहीं डरता है। नहीं आनी है, लेकिन जब डेथ सामने आती है ना तो नानी की नानी याद आ जाती है। नानी याद नहीं आती, नानी की नानी याद आ जाती है। मैं बताती We will summarize this discussion। कोई डेथ से नहीं डरता है, सब लोग सफरिंग से डरते हैं। राइट, पेन से डर लगता है, सफरिंग से डर लगता है कि यार जब मैं अपने से नहीं कर पाऊंगा, ये लोग मेरे को समझ ही नहीं पाएंगे, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ इनको नहीं समझ में आएगा, हाउ विल दे टेक केयर, है ना। सफरिंग से डरते हैं, बेड बाउंड होने से डरते हैं। मुझे फोबिया था कि
अगर अर्थक्वेक आ गया, छत गिर गई तो मैं नीचे दबी रहूंगी तो मेरा दम कैसे निकलेगा? This was the phobia. फिर धीरे धीरे कि वो जब होना है तो होगा, है ना? हाँ, so 99.9% लोग जो है ना, इंडियन मैथोलॉजी जो इंडियन के हिसाब से हर कोई कहता है भगवान चलते फिरते हाँ, ले लेना। बस। अब आजकल मैंने 90% लोगों को जो ऑफ आर एज वो एक ही बात कहते हैं, अरे सारे जिम्मेवारियां पूरी हो गई हैं, बस भगवान बीमारी ना दे, चलते फिरते चले जाए। सो क्या है, लुक एक्चुअली ना, यहाँ से नीचे की बॉडी कुछ नहीं, राइट, ठीक है? एवरीथिंग In इज the हियर brain, इन head. द ब्रेन, एवरीथिंग यू कैन कंट्रोल ईच एंड एवरीथिंग विद आवर ब्रेन, एवरीथिंग। You're right. तो इसलिए है ये गायत्री जाप से या ये जो कंटिन्यूसली चला, महामृत्युंजय तो क्या जाप है चलाते ये हैं लोग। हमारे ब्रेन को इतना रिलैक्स कर देंगे। और ये बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो ये चल रहा है उसके बाद भी रिलैक्स नहीं हो रहे, इट इज नॉट 100% ना। सो क्यों? बिकॉज उनका ब्रेन इतना ज्यादा एक्टिवेटेड है कि वो रिलैक्स नहीं हो रहा है। बट अगर हम अपने ब्रेन को इतना रिलैक्सेशन की स्थिति में ले आए तो एक्चुअली हम बिना किसी पेन किलर के कैंसर पेन को भी ठीक कर सकते हैं। बट इट्स इनह्यूमन, it's not possible for human beings like us. We are mortal human beings, right? वो जो उस पद्धति पे बहुत सारे one of my very close friend is a Jain, है ना? So she says उनके यहाँ जो जैन्स में क्या समाधि लेते हैं, so they will not say anything. They, even with cancer, severe cancer pain के साथ वो समाधि ले सकते हैं। That's because उन्होंने अपने ब्रेन को इतना इवॉल्व किया है। हम सब शायद वहां तक पहुंच जाए, बहुत अच्छा है, लेकिन मुश्किल है हम लोग के लिए, है ना? सो आई कम टू योर क्वेश्चन। आप कुछ कहना चाहते हैं, बट आई थिंक वी विल टेक दैट, है ना? सो आई वाज कमिंग टू सो कि एवरीबडी इज स्कैर्ड ऑफ सफरिंग, राइट? सो बिना सफरिंग की डेथ पॉसिबल है? हाउ, है ना? सो विद best of palliative care. So all my patients who come here and mostly advanced cancers, then we have taken care of, मैंने यहाँ पर 2-3 महीने से ही ज्वाइन किया है, but prior to that in my previous hospital, chronic kidney problems, है ना? So all these things they mostly end up in ICUs, है ना? So most of the times आजकल ICU deaths होती हैं। पहले हमारे इंडियन कल्चर में होम डेथ्स कितने कॉमन थे ना, कि भाई ओल्ड एज हो गया है, उनको अब हॉस्पिटल ले जाने की आवश्यकता नहीं है, उनको फायदा नहीं मिलेगा, that everybody would gather। कितने 90-year-old 100 साल के भी लोगों को वो लास्ट में अगर सांस फूल रही है ना तो वो आईसीयू लेकर ही जाएंगे, है ना? सो ऑल दीज थिंग्स वो हम सो पैलिएटिव केयर का जो ये पार्ट है, एंड ऑफ लाइफ केयर, उसमें क्या है, एक्सेप्टिंग व्हाट इज हैपनिंग, कि नेचुरल कोर्स होने दो। सब एडवांस कैंसर है ना, वो कभी ना कभी तो उनका हार्ट रेट, बीपी, ऑक्सीजन ड्रॉप करेगा, ठीक है? आप कुछ ही कर लो, कभी ना कभी तो वो होगा, ठीक है? सो ये सारे क्रॉनिक लाइफ लिमिटिंग इलनेसेस जिनके बारे में हम बात करें, इनका ना कुछ इस प्रकार से कर्व चलता है, अच्छे दिन बुरे दिन, अच्छे दिन बुरे दिन, अच्छे दिन बुरे दिन, एंड एक बुरे दिन। हाँ, और ये एक नेचुरल ओल्ड एज जो है, फिजियोलॉजिकल जो ओल्ड एज है, उसका भी ऐसा ही प्रकार का कर्व है। और वो कौन सा लास्ट स्टेज होगा जिससे हम उभर नहीं पाएंगे, ये हम कभी नहीं बता सकते, ठीक है? इवन हमें एडवांस कैंसर में भी हम ये नहीं बता सकते, लेकिन एडवांस्ड कैंसर है तो हमको एक पैलिएटिव मेडिसिन के टच में रहना ही पड़ेगा, राइट? तभी हम बेटर सिम्टम मैनेजमेंट कर सकते हैं। और जब समय आए तो जो भी आपका प्लेस ऑफ केयर है, मतलब कोई घर बेहतर समझता है, कोई हॉस्पिटल बेहतर समझता है, कोई इन हॉस्पिस केयर अगेन एक फिलॉसफी है ना? हॉस्पिस केयर मतलब एंड ऑफ लाइफ केयर। सो एंड ऑफ लाइफ केयर हम घर पर दे सकते हैं, एंड ऑफ लाइफ केयर हम हॉस्पिटल में दे सकते हैं। फ्रैंकली हमारे पास यहाँ पर बहुत ज़्यादा इन हॉस्पिस सर्विसेज, एडवांस कैंसर पेशेंट्स वहाँ पर एडमिट होते हैं, बहुत अच्छी नर्सिंग सर्विसेज हैं, बहुत सारे इन एडवांस कैंसर पेशेंट्स को वूंड मैनेजमेंट, देखिए किसी ने मैलिग्नेंट वूंड्स देखे कभी? देखिए फेस पे ब्रेस्ट वूंड्स होते हैं, बहुत सारे जो कैंसर के कारण वूंड्स बन जाते हैं जो हील नहीं होते हैं, सो उनको केयर करना होता है, क्लीनिंग करना है, डेली ड्रेसिंग चाहिए, ये सारी चीज़ें पैलिएटिव केयर का पार्ट है। और हमारे पास आई विश हम फोर्टिस में
कोशिश तो है मेरी, बाकी एडमिनिस्ट्रेशन से कितना सपोर्ट आएगा, लेट अस सी. We really want. I will definitely in my lifetime try to make a hospice. I hope so. So hospice care बहुत ज़रूरी है, क्योंकि घर पर नहीं कर सकते हम. बहुत सारी चीज़ें घर पर अवेलेबल नहीं हो सकती हैं. हम इतना वर्कफोर्स कहाँ से लाएंगे, ट्रेन नर्सेस हम हर किसी के घर में पहुँचा सकते हैं, क्योंकि नॉर्मल नहीं कर सकते. फ्रैंकली हर केयर गिवर को पता होता है कि इनका समय आ गया है. हर मरीज को तो सबसे ज़्यादा पता होता है. मुझसे ज़्यादा मरीज बता सकते हैं कि मेरा समय कितना बचा है. सबको पता होता है. जो उस स्टेज में होते हैं ना, जो सिक होते हैं, उनको पता होता है कि अभी समय कम है, ये अभी इतना ही है ना. मेनी टाइम्स लेकिन हमारे कल्चर में क्या है, हम डेथ के बारे में बात ही नहीं करते. हम वो अगर बोलेंगे भी ना, टर्मिनली इंसान भी अगर बोलेगा कि यार अब मेरे को लगता है मेरा कम समय, अरे छड्डो जी कि मैं गला कर दो जिससे थोड़ी अभी ठीक हो जाना है ना. सो नो, वी हैव टू रिकॉग्नाइज, we have to recognize death is inevitable. But Punjabi बोलने से really pain कम हो जाता है. हाँ, that's because खुशी मिलती है हमको. So but मैं कुछ तो important बोल रही थी, sorry यार, हम ऐसे jump करते रहते हैं ना. आप बोलते थे कि ड्रामा में बनाना चाहती हाँ, I really want to, but let's see. ड्रामा में है हॉस्पिस. So no. But हम सिमिलर हॉस्पिस केयर, लाइक अभी तक जो हम यहाँ कर रहे हैं, वी आर प्रोवाइडिंग दैट सिमिलर केयर इन वार्ड, राइट. सो जो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जो कि चाहे वो सिर्फ फिजियोलॉजिकली ओल्ड एज की वजह से बीमार हैं या कोई प्रॉब्लम की वजह से बीमार हैं, ये रेस्पिरेटरी वाले हमने 2-3 पेशेंट्स किए हैं यहाँ पर, जिनको जो अब आईसीयू नहीं जाना चाहते हैं, उनको ब्रेथलेसनेस होती है, COPD एंड स्टफ. तो उनको हम आईसीयू अगर नहीं जाना चाहते हैं तो हम उन्हें वार्ड में केयर करते हैं. वार्ड में सिम्टम मैनेजमेंट, तो हम एग्रेसिव केयर करते हैं. सिम्टम्स, अगर कोई भी डिस्ट्रेस है तो हम एग्रेसिवली एक्ट करते हैं. लेकिन हार्ट रेट, बीपी, हमारा जो एक एंड ऑफ लाइफ के मॉनिटरिंग फॉर्म हमने बनाया हुआ है, सो उसमें हम हार्ट रेट, बीपी नहीं आवरली, जैसे आईसीयू में हर घंटे हार्ट रेट, बीपी, रेस्पिरेटरी रेट, सैचुरेशन, ये सब मॉनिटर किया जाता है. हम क्या मॉनिटर करते हैं, हर शिफ्ट में, हर घंटे में पेशेंट को पेन है कि नहीं, नॉजिया तो नहीं है, वॉमिटिंग तो नहीं है, पेशेंट का करवट चेंज हुआ कि नहीं, उसे कोई साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस तो नहीं है, केयर गिवर साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस तो नहीं है. ये सारे चीज़ें हम हर शिफ्ट पे, नर्सिंग केयर का पार्ट है कि ये सारे चीज़ें येस नो येस नो येस नो करके चार्ट की जाती हैं. सो एग्रेसिवली हम सिम्टम्स को मैनेज करते हैं, राइट. तो हम बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेशंस नहीं कराते कि भाई रोज़ CBC, LFT, KFT रोज़ करा रहे हैं. देखो, जो इंसान मर रहा है ना, उसका सोडियम, पोटेशियम कुछ तो ऊपर नीचे होगा, ठीक है. ऐसा पॉसिबल नहीं है कि ये सारी चीज़ें नॉर्मल है और इंसान मर रहा है. ऐसा थोड़े हो सकता है कि हार्ट रेट, बीपी, सोडियम, पोटेशियम सब नॉर्मल है और इंसान ले रहा है, नहीं है ना. तो हम हर रोज़ ये सब चेक करा के कुछ भी गेन नहीं करते हैं, ठीक है. सो बट हम बहुत एग्रेसिवली सिम्टम्स को मैनेज करते हैं कि डिस्कम्फर्ट नहीं होना चाहिए पेशेंट को, और केयर गिवर डिस्कम्फर्ट नहीं होना चाहिए, केयर गिवर्स गिल्ट नहीं होना चाहिए, कि दे अंडरस्टैंड. और सारे केयर गिवर्स को समझना ये चीज़ है ना. नहीं तो कल को मामा जी आते हैं और बोलते हैं ऐ की कर रहे हो तुसी, ऐने मार दोगे, आईसीयू लेके चलो, है ना. सो नो, एवरीबडी हैज टू बी ऑन द सेम पेज. नो केयर गिवर गिल्ट, एवरीबडी, सबको यही समझ में आना चाहिए. और ये एक डॉक्टर डिसाइड नहीं करता है, इट्स ऑलवेज अ टीम ऑफ डॉक्टर्स जो कि डिसाइड करेंगे कि यस. सो कि यस, हाँ, सपोज रेस्पिरेटरी का पेशेंट है, सो रेस्पिरेटरी फिजिशियन विल डिसाइड कि यस, आई फील इनको बहुत ज़्यादा आईसीयू ले जाके अभी फ़ायदा नहीं मिलेगा. अगेन इंटेंसिविस्ट कैन ऑल्सो पुट इन अ वर्ड कि हाँ, इनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलेगा. And then I also come into picture कि yes, we can manage him in the ward and we will take care of the symptoms, right? It's always a team effort. It is always a team effort. It can never be one person taking that decision कि भाई मैं भगवान हूँ, मेरे को पता है इनका समय आ गया है और इनको ऐसे ऐसे केयर करना है. That is why you have specialists in every field. Sorry? That is why you have specialist doctors in every field. Yes, that's why. That is true. You know what? Absolutely. Morphine is a gold standard drug for cancer pain. Morphine is a gold standard drug for terminal breathlessness, right? So morphine is a very important drug for me, yes.
for everyone, because everybody has to use it at some point or the other. morphine injections so that he can take a rest. No. So morphine हम जब भी यूज करेंगे, मेजरली मॉर्फिन के दो इंडिकेशंस होते हैं, या तो पेन के लिए हम मॉर्फिन यूज करते हैं या तो ब्रेथलेसनेस के लिए हम मॉर्फिन यूज करते हैं. सो मॉर्फिन सुलाने के लिए हम बिल्कुल भी यूज नहीं करते. सुलाने के लिए अगर पेशेंट रेस्टलेस है, कंफ्यूज्ड है, ये सब प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, तो उसके लिए दूसरी एंटी एंजाइटी मेडिकेशंस होती हैं, एंटी साइकोटिक मेडिकेशंस होती हैं, जो कि हम कभी कभी सुलाने के लिए यूज कर सकते हैं. मॉर्फिन हम कभी भी सुलाने के लिए यूज नहीं करते. 2-3 पैक बिस्किट की अपने आप नींद आ जाएगी. हाँ, राइस ट्यूब से डाल सकते हैं. One thing, headache, stress-related headache is also one of these type of pain. Yes. Whether it comes under your scope or it is neurological. So stress, headaches, primarily, mostly neurologists deal with headaches, and I feel yes, that's right. I also deal headaches, but mostly I would take care of refractory headaches. People prescribe Saridon or Disprin or Crocin. What is the safest medicine? Safest is simple headache के लिए paracetamol 500 और paracetamol 650 mg is safe. आप on and off ले सकते हैं, लेकिन अगर उसका frequency suppose एक हफ्ते में 2-3 बार से ज्यादा हो रहा है, that means we need to see a specialist. हाँ, Crocin is more or less a safe thing. हफ्ते में 2-3 टैबलेट से ज्यादा हो रहा है. हाँ जी. मतलब हेडेक के एपिसोड्स हफ्ते में 2-3 से ज्यादा हो रहे हैं, तो हमको स्पेशलिस्ट को देखना चाहिए. किसी का फैटी लिवर होता है, and just don't take any paracetamol or any pain. So क्योंकि how you will manage them? paracetamol is still the safest painkiller. Even अगर किसी का fatty liver तो बहुत low stage of liver damage है, but liver अगर किसी का damage भी है ना, उसमें भी paracetamol is the drug of choice. It is still the safest painkiller. Fatty liver कोई मेडिसिन नहीं दी जाती. Fatty liver की ऐसी कोई मेडिसिन है ही नहीं. Yes. Great. We must thank you very much. You're wonderful. Thank you very much. We joined. And Wonderful. this is your. Oh no, it's you. No, this is for you. And I would say that there are a lot of interaction from all of us during your discussion. Normally, otherwise we are used to that slide presentations and all that. So thank you very much. I think we have. My pleasure. Yes, Dr. Neha is here. This is for you. This is for you, ma'am. ले लो यार, ले लो भाई, ले लो, दे रही है. And I think the other speaker. Yes. Dr. Neha is there. I don't know about your please. Oh, thank you so much. It was absolute pleasure being with you. You all are highly energetic, but दो चीजें, जो लोग रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करते हैं उनको आज से एक्सरसाइज करना ही है ना. चलो, मैंने अगर इन सब में एक इंसान को भी मोटिवेट कर दिया, my work is done. And each one of you has to motivate at least 2 others to start exercising. We have to prevent fall prevention. Nobody forgets about Live fall long then. prevention. Then live long. That's And it. live long, yes. Yes, absolutely. Agree with you. Absolutely. एक्चुअली एन इन्फेक्शियस डिजीजेस स्पेशलिस्ट, एंड अभी हम जो बात करेंगे उसका मेन मुद्दा ये रहेगा कि आप लोग मेरे पास कभी ना आए. सो द आइडिया इज अबाउट द वैक्सीनेशन. बट अडल्ट्स में भी वैक्सीनेशन होती हैं. बट डू वी नो दैट बियॉन्ड कोविड देयर इज फ्लू, देयर इज न्यूमोकोकल, देयर इज हर्पीज, देयर इज हेपेटाइटिस ए, टाइफॉइड, बहुत सारे तरीके की वैक्सीन होती है. बट ऑफ कोर्स मुझे यहाँ पे आई एम नॉट ओपनिंग अप अ स्टोर कि आपको सारी वैक्सीन लेनी है. अनलाइक द पीडियाट्रिक वैक्सीन, अडल्ट वैक्सीन बहुत ज्यादा कस्टमाइज्ड होती है. सो व्हेन आई टॉक अबाउट कस्टमाइज्ड, हर पर्सन के अपने ग्रुप के हिसाब से, अपने रिस्क फैक्टर्स के हिसाब से वो वैक्सीन होती हैं. तो सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रुप की जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. यू आर वेरी मच रिवर्स एजिंग इवन बियॉन्ड 60, उस वाले ग्रुप की कि आप 60 के 90 के 120 ही रहिए. सो उन लोगों के लिए जो बियॉन्ड 55 एंड 60 इयर्स हैं, देयर आर 3 वैक्सीन्स
जो कि इनवेरिएबली वैसे भी हमें लगवानी चाहिए. सो वो 3 कौन सी है? वन, आई थिंक मेजोरिटी ऑफ यू हैव ऑलरेडी सीन, इज द फ्लू वैक्सीन. अब ये फ्लू क्या होता है? फ्लू इज एक्चुअली एन इन्फ्लुएंजा वायरस. तो अब इसकी वैक्सीन को लगाने से क्या मुझे इन्फेक्शन होने से मैं बिल्कुल प्रोटेक्टेड हूँ? प्रैक्टिकली एक बात हम सबको समझनी पड़ेगी कि वैक्सीन का काम इन्फेक्शन की प्रिवेंशन से ज्यादा इन्फेक्शन की सीवियरिटी पे होता है. किसी भी वैक्सीन को अगर आपने बॉडी में आज डाला तो वो कोई मैजिकल रिस्पॉन्स नहीं क्रिएट करेगी कि आप सेकेंड डे बिल्कुल सुपरमैन और सुपर वुमेन की तरह बाहर निकलेंगे. 14 दिन एवरेज किसी भी वैक्सीन को लगते हैं अपना काम करने. सो 14 डेज के बाद उसका फुल ऑन रिस्पॉन्स आता है. तब तक के लिए यू हैव टू स्टिल बी कॉशियस द वे यू आर डूइंग, एंड अलॉन्ग विद दैट दिस इज एक्चुअली एन एड ऑन टू बूस्ट अप योर इम्यूनिटी. सो दिस इज वन वेरी कॉमन वैक्सीन विच इज अ फ्लू वैक्सीन. सेकेंड इंपॉर्टेंट वैक्सीन जो आती है, अगेन मोर देन 50 की अगर हम अभी बात कर रहे हैं, इज द न्यूमोकोकल वैक्सीन. सेम भाई बहन ही है, वो वायरस है, ये बैक्टीरिया है. वायरस पहले कहता है कि मैं जाऊंगा, मैं आपको एंट्री दूंगा, अब तुम्हारी बारी है. सो इट्स द सेम. न्यूमोकोकल वैक्सीन इज द मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया कॉजिंग निमोनिया इन द एंटायर वर्ल्ड. और इंडिया में उसके अभी भी इवन इन 2023 70 to 75% जनता को साल में एक बार न्यूमोकोकल निमोनिया होता है. एंड मोर देन 50% के लोगों में ऑलमोस्ट 50% हॉस्पिटलाइजेशन आज भी न्यूमोकोकल निमोनिया से होती है. तो ऐसे में इसका क्या फायदा है, बेनिफिट है? न्यूमोकोकल वैक्सीन जो होती है वो 2 टाइप्स की होती है. इन दोनों वैक्सीन को आइडियली हम लोग आपको शेड्यूल, थैंक्स टू पारस, हम लोग आपको शेड्यूल भेजेंगे फॉर ऑल द अडल्ट वैक्सीनेशन की किस किस को किस टाइम पीरियड में क्या लगवाना चाहिए. बट फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पजेस 2 न्यूमोकोकल वैक्सीन के शेड्यूल से हम अगेन सिवियरिटी, हॉस्पिटलाइजेशन और आपका ओवरऑल आउटकम को मोर देन 90% तक इम्प्रूव कर सकते हैं. राइट. हम बोलते हैं कि न्यूमोकोकल निमोनिया के लिए तो एंटीबायोटिक्स भी हैं, लेकिन आज की युग की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा यही है कि एंटीबायोटिक्स अपने आप में ही इतने रेजिस्टेंट हो रहे हैं. इनफैक्ट आई गॉट लेट बिकॉज आई जस्ट लैंडेड अप विद वन पेशेंट इन द ICU बिकॉज ऑफ निमोनिया. ओके, the person is 60-year-old. He is landed up in the pneumonia because he is a diabetic and hypertensive. So that's the dearth of it. कि आज में भी knowing the fact कि we have so much of preventive, third important vaccine होती है herpes की. So आप सबने herpes वायरस का नाम सुना है. ये एक ऐसा वायरस है जो आपकी बॉडी में एक बार हुआ तो वो वही रहेगा, और वो हर बार अगर आपकी इम्यूनिटी ट्रिगर हुई, स्ट्रेस हुआ या कोई भी ABC इन्फेक्शन हुआ, ये रिएक्टिवेट पहले हो जाएगा. बाकी का इन्फेक्शन जाए ना जाए, ये फर्स्ट ट्रिगर हो जाता है. सो हर्पीज की प्रॉब्लम मैं हमेशा बोलती हूँ इन माय पेशेंट्स, हर्पीज की प्रॉब्लम कभी हर्पीज होती ही नहीं है. वो तो 5 से 7 दिन आपके दाने निकले, आपको इचिंग हुई, वो आपका सिम्टोमेटिकली ट्रीटमेंट हो गया, खत्म. हर्पीज की प्रॉब्लम उसके बाद शुरू होती है, क्योंकि वो आपकी नसों को अफेक्ट करता है. आई एम श्योर कि अगर आप में से किसी को हर्पीज हुआ होगा तो उसके बाद वो जो जलन, वो जो नर्व का जो टिंगलिंग, एग्जैक्टली सर. एंड आपको इफ आई मे आस्क, आपको लास्ट कब हुआ था सर? 1998. 25 साल पहले. 25 साल पहले. 29 हमें हुआ था 2005. So yourself you guys can be telling me, क्योंकि it's actually clearly visible कि post after herpes जो nerve pain है सर 80% जनता को नियरली मीडियम 10 साल तक रहता है. ये आप लोग ही और ये हमारे आज का डेटा भी कह रहा है कि हर्पीज की प्रॉब्लम कभी भी एक्टिव हर्पीज नहीं होगी. वो आपका 6-7 डेज 10 डेज तक मैक्सिमम इट गेट क्लियर्ड, बट उसके बाद जो झुंझुनाहट, जो टिंगलिंग, जो सुनपन, numbness, that area feels like everybody. So this is not my own शब्द का word. The people who tell me कि it's like कि पूरा शरीर जलता है, that kind of sensation comes. और इसको प्रिवेंट करने के लिए आज की डेट में हमारे पास वैक्सीन है. And it has been said कि this vaccine can actually reduce the complication of herpes to almost 80 to 85%. So all these numbers are pretty good, pretty powerful, and pretty tried before I came up in front of you and telling about all this. So herpes की वैक्सीन का 2 dose schedule, first dose and 6 महीने बाद दूसरा, post herpetic यानी after herpetic complications को majorly reduce कर सकता है. ये हर्पीज का एक सेगमेंट ऑफ कॉम्प्लिकेशन है जो हम एक्चुअली में देख पाते हैं बिकॉज ऑन दी ओपीडी पर्सपेक्टिव, पर एक्चुअली में उससे भी ज्यादा इश्यूज हो सकते हैं. अडल्ट्स में जब किसी को फर्स्ट टाइम हर्पीज होता है एंड दैट टू आफ्टर 50,
when we eventually say कि immunity धीरे धीरे towards decline आ रही है, and along with that अगर किसी को diabetic है, hypertensive है, heart के patient है, stent लगा हुआ है, लिवर, किडनी, फलाना ढिमकाना, बहुत सारी चीजें हो सकती है. अभी तो आई एम नॉट कमिंग इनटू अ कैंसर कैटेगरी, आई कम टू दैट ऑल्सो. सो इन सारे लोगों में हर्टीज के अंदर ही इनिशियली जो स्किन के दानों से चीजें चालू होती हैं, वो इवेंचुअली निमोनिया, ब्रेन इन्फेक्शन एंड साथ में पेट के इन्फेक्शन में भी आगे कन्वर्ट हो सकती है. तो ये चीज की हॉल्ट या ये चीज के प्रोग्रेशन को रोकने के लिए वैक्सीन इज अ वेरी वेरी गुड एंड एन इफेक्टिव सॉल्यूशन. So these 3 vaccines, irrespective अगर आपको कोई problems है, डायबिटिक हो नहीं हो, कोई और कोमॉर्बिडिटी है या नहीं है, more than 15 everybody has to take as per the mandate, right? It is not for less than 50 years. So less than 50 now I'm coming sir. So adult more than 50 में you have to take irrespective of any comorbid status. Comorbidity से मेरा मतलब है ये सारी problems which I have enlisted. Now coming to less than 50. Thank you.